While I was waiting in the presence of God, God gave me this scripture which I am going to share with you. प्यारे मित्रों, मैं जब प्रभु के चरणों में बैठे इंतजार कर रहा था, प्रभु ने वचन दिया, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। We find that book of Revelation chapter 19 verse 6 to 8. प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 6 से 8वें वचन तक। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 6 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਐਤ ਤੱਕ। And I heard as it were the voice of a great multitude and the voice of many waters and as the voice of a mighty thundering saying, Hallelujah, for the Lamb, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਈ ਅਤੇ ਬਾਹਲਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਈ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਭੜਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਕਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਹੈ। Let's pray. आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Thank you, Father, for gathering all of us here. पिता, हम सबको इस तरह आपने एकत्रित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Thank you, Lord, for giving us this word for tonight. प्रभु, आज रात्रि समय के लिए आपने अपना वचन दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Speak to each one of us tonight, Lord. प्रभु, आज रात हम प्रत्येक से आप बात करें। ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। Holy Spirit, have your own way. पवित्र आत्मा, आप अपने सामर्थ्य के साथ अपनी मर्जी के अनुसार आज रात तक कार्य करें। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ। Father, glorify your Son Jesus Christ in our midst tonight. पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे मध्य आज तू ऊंचा कर। ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Amen. आमीन। ਆਮੀਨ। Here we read about a great announcement being heard in heaven. हम इधर स्वर्ग में होने वाले एक बड़े शब्द का, एक बड़े ऐलान के बारे में हम पढ़ते हैं। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। First they were shouting hallelujah with a thundering voice. और पहले तो उन्हें बड़े गर्जन का सा शब्द सुनाई दिया, हालेलुया। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Then he says omnipotent God reigns. और फिर हम और आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। और फिर आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि प्रभु साडा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। And then he says let us be glad. और फिर आवाज आती है, आओ हम आनंदित और मगन हों। फिर आवाज आ रही है, आओ असी आनंद होइए ते निहाल होइए। Why we should be glad? हमें क्यों मगन होना है? असी क्यों निहाल होना है? Here says for the marriage of the Lamb has come. क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। क्योंकि लेले दा विवाह आ पहुंचा है। Why the word is written here
omnipotent reigns, इधर क्यों ऐसे शब्द लिखा है कि सर्वशक्तिमान राज्य करता है? इधर क्यों इंज शब्द लिखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज करता है? Satan was hindering this great program of God. शैतान आरंभ से ही परमेश्वर के इस बड़े कार्यक्रम को रुकावट खड़ा कर रहा था। शैतान शुरू तो इस परमेश्वर दे वड्डे प्रोग्राम दे लिए रुकावटां खड़ियां करदा सी। Jesus Christ said, I shall build my church, the gates of hell shall not prevail against it. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक दे फाटक उस दे उत्ते कामयाब नहीं होंगे। Paul in 2 Corinthians 11th chapter he says, I exposed you as a chaste virgin to Christ the bridegroom. दूसरे कुरिन्थी में प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने दुल्हा के साथ एक पवित्र कुमारी की तरह तुम्हारी बात लगाई है। और दूसरे कुरिन्थिया 11 अध्याय विच पौलुस कहता है कि मैं एक पाक कुंवारी की तरह ताड़ी पति दे नाल कुड़माई कीती हुई है। This matter is concerning to us. और ये जो विषय है ये हमसे संबंधित है। ये विषय जो है ये साडे नाल संबंधित है। Why it is concerned to us? इस वचन का हमारे साथ क्या संबंध है? इस वचन का साडे नाल की संबंध है? We are the chosen bride of Jesus Christ. मसीह यीशु के चुने हुए दुल्हन आप और मैं हैं। मसीह यीशु दी चुनी हुई लाड़ी मैं अते तुसी हां। We have not come to Christ to get some healing. हम यीशु मसीह के पास कुछ चंगाई पाने नहीं आए। असी यीशु मसीह दे कोल कोई चंगाई लेने वास्ते नहीं आए। We have not come to Christ to get some financial benefit. हम मसीह के पास कुछ पैसे का या कुछ धन दौलत पाने नहीं आए। या असी मसीह दे कोल कुछ पैसा या धन दौलत पाउण नहीं आए। We have not come to Christ to get some privileges on this earth. इस संसार में कुछ सुख और आराम पाने के लिए हम मसीह के पास नहीं आए। या इस संसार दा सुख विलास आराम पाउण वास्ते मसीह दे कोल नहीं आए। Through the cross we came to know how much this great God loves us. क्रूस की कथा के द्वारा हमें मालूम चला कि इतना महान परमेश्वर हमें कितना गहरा प्यार करता है। सलीब दी कथा दे द्वारा सानू पता लगा इतना महान परमेश्वर सानू कितना प्यार करता है। Though we are sinners doing all kinds of things against God, even then this great God continued to love you and me. बेशक हम पापी थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, परमेश्वर के विरोध में हम कार्य करते थे, तो भी परमेश्वर आरंभ से ही हमें प्यार करता रहा। बेशक असी पापी सी, परमेश्वर दे दुश्मन सी, परमेश्वर दे विरोध विच पाप करदे सी, फिर भी परमेश्वर शुरू तो सानू प्यार करदा आ रहा सी। Through the cross Jesus Christ demonstrated the love of God to the mankind. क्रूस के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह यीशु ने परमेश्वर के मनुष्य के साथ का प्यार को प्रकट किया। और सलीब दी कथा दे द्वारा मसीह यीशु ने जो परमेश्वर दा मनुख दे नाल प्यार है उस प्यार नु प्रगट कीता। Why we have come to Jesus Christ? हम मसीह यीशु के पास क्यों आए? असी मसीह यीशु दे कोल क्यों आए? Not to get some material things. कुछ संसारिक बातें पाने नहीं आए। या को संसार की चीजें पाउण वास्ते नहीं There are आए। so many places in the world where you can get all lot of material things. इस संसार में कितने जगह हैं जिधर एक इंसान जाए या हम जाकर अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सकते थे। इस संसार विच किनियां थावां हन जिथे जाके असी अपने संसार की चीजां दी पूर्ति पूरी कर सकते We हैं। have not come to get some physical healing. हम इधर शारीरिक चंगाई पाने नहीं आए। असी इत्थे शरीर की चंगाई लेने वास्ते नहीं आए। But there are so many other places where you can get healing. संसार में कितनी जगहें हैं जिधर एक बीमार शारीरिक चंगाई पा सकता है। संसार विच किनियां थावां हन जिथे एक बीमार शरीर की चंगाई पा सकता है। We saw the great love of God through the cross. हमने क्रूस के द्वारा महान परमेश्वर के प्यार को जाना, उसके प्यार को देखा। असी सलीब दे द्वारा महान परमेश्वर दे प्यार नु जानिया, उसदे प्यार नु वेखिया। Through the Holy Spirit we came to know how sinful we are. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम कितने बड़े पापी हैं। पवित्र आत्मा दे द्वारा सानू ज्ञान मिलिया कि असी किन्ने बड़े पापी हां। Through Jesus Christ
on his cross, we came to know that the eternal God has a great plan. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा हमें यह समझ मिली कि अनंतकालीन परमेश्वर को हमारे विषय एक अनंत काल का एक कार्यक्रम है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। What is that great plan? परमेश्वर के हमारे विषय एक बड़ी योजना क्या है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? The great God is going to create a new heaven and a new earth and a new Jerusalem. सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर एक नया आकाश, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम बना रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक नवा आकाश, नवी धरती, एक नवा यरूशलेम बना रहा है। About 3 weeks or 4 weeks ago, I read a newspaper reading in Times of India that was published through the scientists of the whole world. कुछ समय 2-3 हफ्ता पहले समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने कुछ संदेश पढ़ा, समाचार पढ़ा जो दुनिया के बड़े मशहूर वैज्ञानिकों ने लिखा है। और कुछ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। That has come in the front page of Times of India. टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के मुख्य पेज पर, और सबसे पहले पेज पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया ਦਾ ਪਹਿਲਾ टाइम्स ऑफ इंडिया ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ पेज ਉੱਤੇ आई है। They stated that if you do not do something quickly within these 8 years, the condition of the earth will be disastrous. और वैज्ञानिकों का एक मत है कि अगर 8 साल के अंदर हमने कुछ सुधार नहीं किए तो हमारा पृथ्वी सुधरने की सीमा पार कर चुकेगा। और ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Day before yesterday, Indian scientists said within 18 years all our oil reserves will be completed. 3 दिन पहले वैज्ञानिकों ने बोला कि 80 साल के अंदर 18 years, India. 18 साल के अंदर ही हमारे भारतवर्ष में जमीन के नीचे से मिलने वाली सारी तेल और ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और 2-3 दिन पहला ही जो समाचार पत्र ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਤੇਲ ਜੋ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Thousands of years ago, saints through the Spirit of God said, God will throw away the sky and this earth like an old cloth. हजारों साल पहले आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु के दासों ने वचन लिख डाला कि महान परमेश्वर ये आकाश और पृथ्वी को एक पुराने कपड़े की तरह दूर फेंक देगा। हजारां साल पहला आत्मा दी प्रेरणा पाके प्रभु दे दासां ने यह वचन लिख दिता कि परमेश्वर इस आकाश ते धरती नु पुराने कपड़े की तरह बदल देवेगा। Friend, our hope is on the new earth and new heaven. प्यारे मित्रों, हमारी आशा नया आकाश नई पृथ्वी पर है। मेरे प्यारो दोस्तों, साड़ी आशा जो नवा आकाश ते नवी धरती दे उत्ते है। And we have a dwelling place which is called New और Jerusalem. हमारा एक निवास स्थान है, उसका नाम नया यरूशलेम है। साडा एक निवास स्थान है जिसका नाम है नवा यरूशलेम। How we are going to live there? हम वहां पर कैसे रहेंगे? असी उत्थे किस तरह रहांगे? We are going to live with our Heavenly Father as a family member. और हम हमारे स्वर्गीय पिता के साथ परिवार के एक अंग की तरह रहेंगे। असी अपने स्वर्गीय पिता दे नाल एक परिवार दे अंग दी तरह रहांगे। In the Bible, this experience is explained in different languages so that man can understand. हम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में इस विषय को अलग अलग तरीके से विवरण दिया है ताकि हर एक मनुष्य इसकी गहराई को समझ सके। परमेश्वर दे पवित्र वचन विच बाइबल विच अलग अलग तरीके दे नाल इस नु खोल के दस्या गया है ताकि हर एक व्यक्ति इसकी गहराई नु समझ सके। In this 19th chapter of Revelation, it is explained like a marriage with the Lamb of God. और इस प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में उस संबंध को
दूल्हा के साथ, ये परमेश्वर के मेमने के साथ का शादी के तौर पर विवरण किया गया है। और प्रकाश दी पोथी 19 अध्याय दी 6 आयत विच कि एक लाड़े दा जो लाड़ी दे नाल संबंध है, इस संबंध दे तौर ते इस जगह ते विखाया गया है। Just like a bridegroom comes and marries a bride and takes her to his home, in the same way the time has come for us to leave this earth. जिस प्रकार दूल्हा आकर दुल्हन को अपने साथ अपने घर ले जाता है, वैसे ही समय आ पहुंचा कि हमें अपना ये तात्कालिक घर छोड़कर अपने असली घर जाने का। और जिस तरह एक लाड़ा आके लाड़ी नूं विआह के अपने घर ले जाता है, इसे तरह ही समा आ गया है ये नाशवान घर नूं या धरती नूं छड्ड के असली घर विच जाण दा। Here one word is very important. इधर एक विषय, एक शब्द बहुत मुख्य है। इधर एक शब्द बहुत ही मुख्य है, That is hallelujah, omnipotent reigneth. जो लिखा है हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। इधर एक शब्द आया है हालेलुया, क्योंकि प्रभु साडा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज करता है। Why that is emphasized? ये बात को इधर क्यों उल्लेख किया गया है? और इधर इस गल नूं एक मुख्य तौर ते क्यों दस्या गया है? Satan tried all his possible ways to delay this marriage. शैतान ने अपना पूरा जोर मारा ताकि ये विवाह में देर हो जाए, और शैतान ने अपनी पूरी वाह ला दी किवें ना किवें इस विआह विच देर लग जाए। In spite of all his effort, omnipotent reigneth, the marriage has come. उसके सारे प्रयास के बावजूद भी परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है, इसलिए विवाह का समय आ पहुंचा है। उस दियां सारियां कोशिशां दे बावजूद भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज करता है, इसलिए उसके विआह दा समा आ पहुंचा है। You can look at the eye of Satan and say like this. आप शैतान से आंख में आंख मिलाकर बोल सकते हैं। तुसी शैतान दे नाल अखां दे नाल अखां मिला के कह सकते हो, Satan, I am a chosen man. हे शैतान, मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ, मैं एक चुनिया हुआ बर्तन हां, I am the bride of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूँ। मैं यीशु मसीह दी लाड़ी हां। You may try to stop me with the attractions of the world. तू मुझे कई बार संसार की धन दौलत दिखाकर मेरे रास्ते में रोड़ा लाने का प्रयास करेगा, और तू मैनू कई बार संसार दा धन दौलत ऐश प्रस्ती विखा के मेरे राह विच रोड़ा पाउण दी कोशिश करेगा। You may bring many temptations against me. तू मेरे जीवन में कई परीक्षाएं लाएगा, तू मेरे जीवन विच बहुत सारे परतावे लियावेगा। You may dig many pits before me. मेरे रास्ते में तू बड़े गड्ढे खोदेगा, और तू मेरे रास्ते विच बहुत ही गंदे भयानक खतरे लेके आएगा। Omnipotent reigneth. लेकिन सर्वशक्तिमान राज्य करता है। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज करता है। That's why Jesus said, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I will build my church, the gates of hell shall not prevail against it. मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक दे फाटकों उसते उत्ते प्रबल नहीं होंगे। Satan, whatever hindrances you may bring, whatever problems you may bring, whatever temptation you may bring, my time of deliverance has come. हे शैतान, तू मेरे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं लाए, कितने भी रोड़े लाए, मेरे छुटकारे का समय आ पहुंचा है। हे शैतान, तू मेरे जीवन में किन्ने भी परतावे लेके आ, किन्ने भी रोड़े खड़े कर, लेकिन मेरे छुटकारे का समय आ पहुंचा है। I am a chosen man. मैं एक चुना हुआ पात्र हूँ, मैं एक चुनिया हुआ पांडा हां। I am bought by the blood of the Lamb of God. मैं परमेश्वर के मेमने के खून के द्वारा खरीदा गया व्यक्ति हूँ। मैं परमेश्वर दे लेले दे खून दे द्वारा खरीदा गया व्यक्ति हां। I am engaged with a person. मेरा एक व्यक्ति के साथ बात हो चुकी है, मेरी एक व्यक्ति दे नाल कड़माई हो चुकी है। He is coming to take me. जिसके साथ मेरी सगाई हुई वो मुझे लेने आ रहा है। जिसके नाल मेरी मंगनी होगी ओ मैनू लेने वास्ते आ रहा है। Can you stop him? क्या तू मुझे रोक सकता है? Stop him. क्या तू मेरे दुल्हा को रोक सकता है? कि तू मेरे लाड़े
has come. हमारे विवाह का समय आ पहुंचा है। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। What do you mean by marriage? विवाह का मतलब क्या है? ਵਿਆਹ ਦਾ Becoming, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? becoming one body. हाँ, एक शरीर बनना है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। Hallelujah. हालेलुया। Let Satan do anything. शैतान को अपना पूरा जोर मारने दो। शैतान तू अपना पूरा जोर डाला। Let Satan bring persecution. शैतान सतावट लाए। शैतान सतावट लेके आ। Let Satan bring persecution, burn people alive. चाहे लोगों को जिंदा जला दे, चाहे लोगों को जिंदा साड़ दे। Let Satan bring new rules and regulations. चाहे शैतान नए कानून लेकर आ जाए, चाहे शैतान नवे नवे कानून लेके आ जाए। Omnipotent reigns. सर्वशक्तिमान राज्य करता है। सर्वशक्तिमान राज करता है। Omnipotent reigns. सर्वशक्तिमान राज्य करता है। सर्वशक्तिमान राज करता है। We are victors. हम जयवंत हैं। अच्छी फतेहमंद है। We are victors. हम जयवंत हैं। अच्छी फतेहमंद है। We are going to crush the head of Satan and go home. हम शैतान के सिर को कुचलने के बाद ही अपने घर जाएंगे। ਅਸੀਂ शैतान ਦਾ ਸਿਰ ਮਿੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। That time has come. वो समय आ गया। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। That time has come. वो समय आ गया है। That time has come. वो समय आ पहुंचा। That time has वो come. समय आ पहुंचा। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। This is the time of victory. ये जय का समय है। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Pray. प्रार्थना करें। If you believe this word, pray and rejoice. अगर आप इस वचनों पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करें और आत्मा में मगन हो जाएं। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਾਓ। Satan cannot stop you. शैतान आपको रोक नहीं सकता है। शैतान तू रोक नहीं सकता। Our bridegroom is coming. हमारा दुल्हा आ रहा है। साडा लाड़ा आ रहा है। Listen well. ध्यान से सुने। ध्यान देना सुनिए। We are not going by our own self there. हम अपने आप अपने घर नहीं जाएंगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। He is coming. हमारा दुल्हा आ रहा है। ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। He will take us. वो हमें लेकर जाएगा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। Who can stop him? कौन उसको रोक सकता है? कौन उसਨੂੰ रोक सकता है? Our bridegroom is coming. हमारा दुल्हा आ रहा है। साडा लाड़ा आ रहा है। He is coming here. वो इधर ही इस पृथ्वी में आ रहा है। ਉਹ ਇੱਧਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। He will come in the air. वो मध्य आकाश में आएगा। ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ। Give an order. एक आज्ञा दें। एक हुक्म देगा। My bride, come here. मैं और वो बादलों में आकर My bride, come here. और वो कहेगा, मेरी दुल्हा आजा। वो कहेगा, मेरी लाड़ी आजा। Who can stop him? कौन मेरे दुल्हा को रोक सकता है? कौन मेरी लाड़ी नु रोक सकता है? This body will be changed. यह शरीर बदल जाएगा। एक शरीर बदल जाएगा। In a split of a second. एक क्षण भर में यह शरीर बदल जाएगा। एक पल भर ਵਿੱਚ ही शरीर बदल जाएगा। We'll be like him. हम उसकी तरह होंगे, उसके समान होंगे। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। Do you believe this? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? Why are you afraid? फिर आप डरते क्यों हैं? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? Why are you afraid? फिर आप डरते क्यों हैं? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? Rejoice. आनंदित हो जाएं। ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। या हम लोग मिलकर जय का छोर है वो गीत अंशु वगैरह माइक में गा। Let's sing a song and worship God. गीत गाकर प्रभु की आराधना करें। आइए गीत गा के परमेश्वर की आराधना करें। मृत्यु
लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। जय का जोर है
राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। सर्वशक्तिमान